This is Professor Dr. B.S. Chaudhary. You may have got opportunity to watch my lecture number 1, Self-Discovery and Talent Management, How to Achieve Excellence in Your Career. We quickly recap takeaway of lecture number 1. The first point we discussed in lecture number 1 was when you teach others, you learn more. Second, how to get benefit from 4 dimensions of knowledge. Third point, how to become self-entrepreneur. In COVID-19, millions of jobs gone away. This gives you an excellent opportunity to create entrepreneur skills. Fourth point, to avail scholarship opportunities based on links and details of our career roadmap free guide, free book you can download. Now we embark upon our lecture number 2, that is unlock your personalization. Every human being is God gifted with some talent. In this lecture we learn how to unlock that talent, that our hidden potential, and how we can program our subconscious mind to achieve our goal. Let me quote from the book Unlock Your Personalization, written by a very well-known professor, Ramji Prasad, published by Aalborg University Press, Denmark. I was fortunate to meet him during European Union Erasmus Mundus project meeting Mobility of Life. He has written in his book, there is enormous capacity with every human being that should be properly utilized to achieve your goals. Taking up the challenge and entering the competition is a road to success. So in this lecture we mainly cover what is the personalization, how to unlock your personalization, and how to achieve your goals using conscious and subconscious mind. Let us now talk about personalization. It is a key word in daily human life, क्योंकि आपको किसी खास नाम से जाना जाता है. It can be interpreted as your unique recognition of your own efforts, your disposal of your own achievement or creation is also personalization. Your ability to achieve something special is also a personalization. Such achieving it may lead to personal success and full satisfaction in life. आपके पेरेंट्स ने पैदाइश के वक़्त ज़रूर ख़ानदान का या आपके सरनेम वाला नाम दिया होगा, लेकिन आप अपनी पर्सनलाइजेशन को कुदरत की अता की हुई यूनिक क्वालिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी शनाख्त या यूनिक आइडेंटिटी बना सकते हो. Now, in next slide, we discuss about unlock your potential or unlock your personalization. So the first thing is see your job as a craft. You may have heard name of Robin Sharma, the author of book Leaders Without Title and the founder of Titanic Academy, Canada. उनका ये कहना है कि आप महसूस न करें कि आप किसी से कम हैं. हमें अपने मुल्क में अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स के साथ अच्छे मुआशियात के माहिर, अच्छे वकील, अच्छे प्लम्बर, अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे राइटर, अच्छे टेक्नीशियन, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे उस्ताद, अच्छे लीडर्स, सबकी ज़रूरत है. वेदर यू आर अ टीचर, whether you are a firefighter, whether you are a shoemaker, whether you are a gardener, आपको आपके काम में एक लीडर का रोल प्ले करना है.
your leadership potential is less about title and more about approach. So you see your job as a craft. तो आइए अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, मेक एक्सीलेंस एज अ हैबिट। ये अरिस्टोटल जो मशहूर ग्रीक फ़िलासफ़र है, उसकी ये कोट मैंने कई बार हमारे एचईसी के जो मौजूदा चेयरमैन हैं डॉक्टर तारिक बनोरी साहब, उनको स्टूडेंट को एड्रेस करते हुए, फैकल्टी को एड्रेस करते हुए कई बार उनसे सुनी। इट्स ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ हाई इंटेंशन, सिंसियर एफर्ट्स एंड इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन। सो एक्सीलेंस इज़ नेवर एन एक्सीडेंट। 95% चीज़ें जो आप करते हैं, दे आर रिजल्ट ऑफ योर गुड हैबिट। मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है। मैं 1984 में इंग्लैंड पीएचडी करने गया। हर हफ्ते जब हमारे ग्रुप की लंच होती थी तो उसमें लोग टीवी प्रोग्राम, फिल्म्स, न्यूज़, इन सब का जिक्र करते थे। वो कई अदाकारों, प्रेजेंटर्स उनके नाम लेते थे। मुझे बड़ी मायूसी होती थी कि मुझे उनका इल्म ही नहीं है नाम का। नेक्स्ट डे मैंने टीवी के साथ एक कॉपी रख दी, हर नाम और प्रोग्राम नोट करता गया। अगले हफ्ते जब जिक्र आया कि हॉलीवुड की मूवी ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन जो बीबीसी ने दिखाई, उसमें फ़लाँ ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, जब मैंने डस्टिन हॉफमैन का नाम लिया तो सब मेरी मेमोरी को देखकर हैरान हो गए। सो यू रिमेंबर थिंग्स बेटर इफ़ यू राइट देम डाउन। इस तरह आप अच्छी आदत बना लेंगे, हर नई चीज़ को आप नोट करते जाएंगे। हैव ए थ्रस्ट टू लर्न मोर। ये किसी और ने नहीं कहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में, जिसमें ये चीफ गेस्ट थे, स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा, डेवलप गुड इमेजिनेशन, बी क्रिएटिव एंड बी पॉजिटिव, एन्जॉय योर वर्क, कीप योर सेल्फ बिजी प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सेट योर टारगेट। प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद जैदी, फाउंडर रेक्टर ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉमसेट्स, उनसे ये कई बार मैंने सेंटेंस सुना। वो 2 कमरे और 2 टीचर से उन्होंने कॉमसेट्स को शुरू किया और इस वक्त 7 campuses, 98 degree programs, 34,000 undergraduate students, 700 PhD students, 5,000 plus master's student, 1,000 से ज़ायद PhD फैकल्टी। तो ये सारा कुछ टारगेट जब सेट करते हैं, आप अचीव करते हैं। वो क्रिकेट की मिसाल देते हैं कि आप टारगेट सेट करें कि नेक्स्ट बॉल पे आपको छक्का लगाना है। बॉल आएगा, आपका टारगेट सेट है, छक्का ज़रूर लगेगा। यू हैव हिट द 6। वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिलीव यू आर गॉड गिफ्टेड। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर फ्लोरेन, जो सिटी यूनिवर्सिटी यूनेस्को चेयर इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उनका मेहरान में एक की नोट टॉक हुआ। एक IBS सखर में आए, एक साल वो कराची में सिंध मदरसा में आए। तो उनका यही कहना था कि जब भी हम किसी को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, हम कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है। तो हमें ये देखना चाहिए हम सब गॉड गिफ्टेड हैं। हम मुनीबा मज़ारी की मिसाल लें, वो फुली पैरालाइज्ड होने के बावजूद वर्ल्ड क्लास स्पीकर और वेल नोन फिगर बन सकती हैं। तो हमें तो ऊपर वाले ने हाथ, पाँव, आँखें सब सलामत दिए, हम क्यों न खुद को गॉड गिफ्टेड समझें। मैं यहाँ कैरोली टेकाकस, जो हंगेरियन बॉर्न था, उसकी बात करूँगा कि उसका अपना सीधा हाथ गलती से ग्रेनेड फटने की वजह से ख़त्म हो जाने के बावजूद उल्टे हाथ से रैपिड फायर पिस्टल शूटिंग में ओलंपिक गोल्ड मेडल 1 नहीं 2 बार मसलसल जीत लिया। ये होती है खुद में हिम्मत से गॉड गिफ्टेड क्वालिटी की सलाहियत उजागर करना। In the next slide, we will talk on conscious and subconscious mind. If we see the conscious mind, it has got quality of having willpower. What we are aware of, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस
वो दिमाग में रखते हैं, हैविंग लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग पे ये काम करता है, जो हम पढ़कर समझकर बात करते हैं। लेकिन इसकी ये बात है, ख़राब बात, के प्रोग्राम बाय अदर्स, जो दूसरों ने बातें कही हुई है हम उस पर रिलाई करते हैं, जबकि हम सबकॉन्शियस माइंड पे आए, वो बहुत ही इमेजिनेशन बेस्ड, इंट्यूशन बेस्ड, आप खुद में एक बिलीव पैदा करें उस पे वो करता है। और इस प्रोग्राम बाय योर सेल्फ इट्स मोर रिलायबल, क्योंकि आप खुद उसको प्रोग्राम कर रहे हैं। वॉट एवर ह्यूमन माइंड कंसीव एंड बिलीव इट विल बी अचीव्ड। अगर आप सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आपको एक अपनी रियल स्टोरी बताऊंगा। मैं इंग्लैंड पीएचडी करने गया था और ये 1986 की बात थी, और मैं अभी पीएचडी शुरू की थी। तो मैंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल देखी और मैंने देखा कि ये स्विट्ज़रलैंड में कॉन्फ्रेंस हो रही है, और मेरे दिमाग में बैठ गया कि स्विट्ज़रलैंड जाना है। लेकिन कॉन्फ्रेंस में जब आपका पेपर ही नहीं हो, आप कैसे जा सकते हैं, और फीस भी ज़्यादा होती है। मैंने उस ज़माने में एक लेटर लिखा, रॉयल मेल कहते थे, उस फर्स्ट क्लास उस मेल में भेज दिया प्रोफेसर को कि आई बिलोंग टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, मैं अफोर्ड नहीं करता, मुझे बड़ा शौक़ है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का, ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट पे अच्छा काम करूं। उन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस की फ़ी वेवर कर दी। मैंने फ़ी वेवर रिक्वेस्ट की जो 650 स्विस फ्रैंक थी। उन्होंने कहा हम आपको ट्रैवल भी देते हैं, आपको होटल एकोमोडेशन भी देते हैं। मज़े की बात, जब मैं गया तो कहते हैं ना, अंधा एक आग मांगे दोनों मिल जाएं। उन्होंने मुझे एक हफ्ते का डेली अलाउंस पर डीएम भी दे दिया, जो वो भी कोई 700 स्विस फ्रैंक हो गया। इतने सारे पैसे, फिर मैंने 2-3 दिन स्टे बढ़ाया, उनके एल्प्स देखने चला गया, जनीवा देखने चला गया, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस ज्यूरिक में हो रही थी। तो इसमें यही है कि आप एक दफ़ा ठान लें, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बात रख लें, क्योंकि आप, ये जो एक मशहूर किताब है ब्रायन ट्रेसी की, वो अपने बुक में लिखते हैं कि योर सबकॉन्शियस माइंड विल मूव यू फॉरवर्ड और होल्ड यू बैक, डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रोग्राम इट। आप अच्छा प्रोग्राम करें, अच्छी चीज़ें सोचें और सक्सेस अचीव करें। आई होप यू मस्ट हैव चेरिश्ड दिस लेक्चर, और ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मस्बत तब्दीली लाएगा, और आप अपनी पूरी तवानाई के साथ खुद को बेहतर, बहुत बेहतर महसूस करेंगे। आप बार बार इसको सुनिएगा, आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाले लेक्चर से भी मुस्तफ़ीद हों। गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू वेरी मच।